शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के खलस्ती इलाके में एपेक्स बॉडी की जानिब से पीस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। एपेक्स बॉडी की जानिब से लद्दाख को मुकम्मल स्टेटहुड देने, लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल, एडिशनल पार्लियामेंट सीट और बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए 4 मुद्दों को हाईलाइट किया गया। शाम इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट में शिरकत की। एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन चुआंग डोरजे लुक्रोड इस प्रोटेस्ट की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 4 पॉइंट्स डिमांड को पूरा न करने की सूरत में एहतजाज में तेजी लाई जाएगी। दीगर कई लीडरान ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। सरपेल तुस्पा तने तुजे चेजुन काजुक शिक ngaje doton digot pinte sangma mimang sangme dunla tene khepchuala tene ning takwan tukje che tene nga padma stanjin tene nga da student union chamjigot te sangme tene gotit pe chulla tene dring ika apex body core member chulla tene ata shama tene ata relic chosono hala le public gathering chosono kabo ngata satim se liu tukpe na ngati ladas po chuches काजुक शिक ngata apex body tonsa ji porteot gome ka ngata statehood indo tese nispa ngata 6 schedule nok statim silu tukpa teni sumpe ka ngata rajya sabha teni ngata mp seat kargil na le niska tong ze tanokle tonang nyampo teni ngata loptuk chospa cham jigot teni loptuk kun cham jigot teni te sangma skangal bardo yokan kabu uti thop sting ne yokan teni ngata recruitment bo cha goz te khone tonsa jipa nokle tene kone tonsa jipa yu recruitment bo khurpa tene ngajang tene apex body ngajang choskyor chosen kazuk shik dasanga ta tonsa un khong jika bortot te sangma yongche chane gyujin ne fein yongche chane junu ne fein zerkan bo mima sangma juchezin chezena daksanga ta pozun pinse yotno poz ni sumji khong ngata daksa I ruling government indo ngata hill council indo administration indo khong ne pinse yot in nang tena ngata skangal bardo mamang pek dukpin ngata daksa district cadre tene ngata syllabus lastana tena ngata graduate level ngata 10 na 12 na skang chuk zete ngata junu ne tonsa mangpek dukpin tene yongche tene tuzune na ngaje I tonsa un tarong khurin dukchen chezana kazuk shik ngata loptuk un po ngata skap stok chog shot khong na ina 6 go shot pin chis kangal bardo dukte un selches koshish chog shot pin te sangma khong ne daksa supa koshish machua taruan tena zo phangse bortole ngaje lo sum song taruan tena un ka kucho tainot kazuk shik district cadre tene ngata pozun advertise shows teno inna tarunga ta tena ngata thu chikchi ngata lasna pingse tena ngata madena no tonang nyampo dasanga ta subordinate board yoto kabo ssc refers to te bi ngata result mibing jesang ngaja mas kyumo ragle din ngata thu nga nyat gal kano khone ngata I pozun tene chief ya hala gas ten kan bo ngata thu ne galtin jano dembana thu ne galtin men chezana tena ngata given si redressal cell ji toshing ngata ladas la yongos kabe na ngata thu na galtik chena te sangma resolve shola ngata ina department toshi yongos te sangma minuk pin yonche chane tu sena ngi rewa chen kazuk sing ngata uskyong une ngata ngala zeto pin thu chik chik ngata skangar bordo micha tonang yapo ngata lasna changma re thoben jen khongne stone chu job yo jen ngata justen bin taru ngata daksa sukpa ngata stone chik na ngata jibgek toshime pos khongne pinstemet tarung stone chu luste yot telinge rewa chen ngaje galtes mapping na ngaje tusjun kazuk sing ngaje doton dik ngata ina chen yosten government ejunga te ngaje taruang chochen daksa ngata tene Ladakh university na ngata posi pinsot pin kabo ngata diring ngata LRC bo ngata tarung gazetted posi fia ngata mandatory macha no halale innang daksa ngata Ladakh university posi pindu juruk kabo ngata assistant register indo ya contractual ka ngata teacher sam mangpo nenduk juruk tene dembanang diring ngaje skunjo chole khonguna kasa diring ma thatpo song tene ngaje yuwa phulkan nangjin diring shamchok la sangma ka yul sangma ne tene khalse ami tangstan mangpen askote duk tene ka jalta molkan gunang tene 6 schedule skolama gaspa choste mimang la ha go chuga zat tene teo man pa ngata e junu gunele khas kal silkan gune tene chi skalas bardo yot yuti Ladakh sena tebang mimang la ma gyala choste ha go chuga zat te ma gyala song yang ika skyotkane tene tsamshi mimang skyotiot te tsangma tene tewa ngata khone body language kan tewa ha goruk
콩 차나 요때 콩 하고때 식셔를 잠시 각자는 떼오 하고때 시고때 독 떼오 뎀바 마 통땡아 마 탓보송 때네가 레와락 때네 샴쪽세 미 상말라 때네 식셔를 레스콜라야 때네 에펙스 보디 디만드 무니스콜라 치 테소미도 때 상마 때네 디링 살포 송테 콩라 하고때 도 사마라 इस तिंगमा तांगाजा चांगतांगा चाचिजिन तारुं डेट पो तारुंगाजा मचो आयोरले तेने हारू ब्लॉग नंग तेने चांगतांगे तेने गाता न्योमा नंग दुर्बुक निस्का छे ज़ंस्कार के दो काउंसलर में सर जंग जारी है। एक काउंसलर का ताल्लुक बीजेपी और दूसरे का एनसी से है। दोनों आजकल सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि लद्दाख के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को छोड़कर यूटी की अलग भी सभी दीगर सियासी और मजहबी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर है। एनसी काउंसलर फुनसुक ताजी सयाहत और ज़ंस्कार अफेयर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। वो पुणे के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने करगिल के जर्नलिस्ट से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी काउंसलर की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया और इसे सियासी हथकंडा करार दिया। बीजेपी काउंसलर स्टेंजल लिक्पा ने ताशी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। से ज़ंस्कार को सब डिवीज़न में एक स्पेशल सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देने का एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो मुद्दा उठे थे, जिस वक्त ज़ंस्कार के सारे सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स, उसमें रिलीजियस ग्रुप भी थे, वो सब अप्रैल के महीने जो है ना उन्होंने एक मीटिंग करवाया था गांव के कम्युनिटी हॉल में। वहाँ पे ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ज़ंस्कार गोंडपा एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, सारे पॉलिटिकल ग्रुप थे। वहाँ पे एक चीज़ डिसीजन हुआ था कि सेंट्रल में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के गवर्नमेंट को देखते हुए या उनके आने वाले फ्यूचर की उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि तब का इलेक्शन 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा। सारे ज़ंस्कार एक मिल के पॉलिटिकल कोई वो पॉलिटिकल बाकी चीज़ों मुद्दों को बाहर रखे और उन्हीं चीज़ों पे आगे चलते हुए मैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे हिल काउंसिल करगिल में एज इसी काम कर रहा था और आज भी मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने ज़ंस्कार की सिर्फ एक और इशू डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने प्रेजेंट इनकम्बेंट एमपी जमजंग सिंह नमग्याल को वोट दिया और अब सभी लोगों को मालूम है कि ज़ंस्कार से 90% से एबो जो वोट एक ही पार्टी को आए थे। 3 साल तक बीते हुए 4 साल तक वहाँ के लोकल लीडर्स, जिसमें हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स हैं, उसने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया। कभी उसने बोला लोसर के दिन में लोसर के डेट पे वो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होगा, कभी बोलता है 26 जनवरी को अनाउंस होगा। और उसके बाद जब उसने 2 साल पहले एक ड्रामे उसमें ज़ंस्कार ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेजेंट जब उनको दिया गया, उस वक्त भी ले में जो ना फोकस न्यूज़ के एडिटर उसको पूछ रहे थे कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट कब दिया जाएगा फॉर्मली। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, उन्होंने ये बताया कि विद इन 1 मंथ ऑफ उसके एग्जाम्पशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बनने, डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बोलते हैं उसको, पता नहीं किस किस्म का एक वो निकाला है उन्होंने, नोशन निकाला है। ये तो कहीं भी नहीं होते। एक सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट का प्रेजेंट बन के घूम रहा है अभी तक, और 1 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर निकाले के बोला, और आज 3 साल के बाद भी कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में इतना रिजेंटमेंट है ज़ंस्कार में कि लोग सिर्फ आज के डेट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बगैर और कुछ देखना नहीं चाहते हैं। उन्हीं चीज़ों को, लोगों के रिजेंटमेंट को देखते हुए हफ्ता 10 दिन पहले फिर एक ड्रामा, खुद ज़ंस्कार जाते हैं और ज़ंस्कार में कांग्रेस के काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, अपने पार्टी के कुछ वर्कर्स को बुला के और बाकी ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोंडपा एसोसिएशन मेंबर्स को बुला के एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। क्या मकसद है, क्या मतलब है? जबकि ज़ंस्कार वालों ने 90% से प्लस वोट दे के एमपी के, बीजेपी के एमपी को बनाया है, और आज के डेट में और एक रेजोल्यूशन निकालने का कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ एक ड्रामा है। उसके बाद रिसेंटली 2-4 दिन पहले वो करगिल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने देखा, और उसमें बड़ा एलिगेशन लगा रहा था कि जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर है मुझे, कि मैंने वहाँ पे टूर नहीं किया या मैंने कुछ और नहीं किया। क्योंकि जब 6 शेड्यूल का रेजोल्यूशन करगिल हिल काउंसिल ने पास किया
मैंने ये चीज़ देखा कि एमपी साहब भी बोलते हैं उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें कोई न सर है न पैर है। देखो भैया, हमने तो लद्दाख के सीनियर लीडर जिसमें थुप्तेन सांग जी है, जिसमें लखरुख कचरिंग जी है, जिसमें कंबर अली साहब है, करबलाई साहब है, रिगजिंग जोरा जी है, बहुत ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने लद्दाख को शेड्यूल टाइप दिलाया, जिनके बदौलत संस्कार लद्दाख में हिल काउंसिल आया, लद्दाख में यूटी आया, और वही लोग जो है आज 6 शेड्यूल स्टेटहुड और बाकी चीज़ों के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। हम लद्दाख की उन लोगों में से जो सीनियर लीडरों की एडवाइस पे चलते हुए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हिल काउंसिल करगिल ने कल रिसेंटली हमारे उस मीटिंग में जो है ना इस आवाज़ को हमने लोगों के वो किया और लोगों की आवाज़ बन के हमने इस शेड्यूल को हिल काउंसिल करगिल ने पास किया। ज़रूरी नहीं है कि वो हिल काउंसिल करगिल का वो जो है ना कोई ऑफिशियल उसमें हो ना हो, लेकिन लोगों की आवाज़ को हमें आगे पहुंचाना था, वो हमने पास करवा दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. News 18 Network. आप देख रहे हैं News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बार एसोसिएशन लेह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी लासू की क़यादत में जस्टिस तासी रेगिस्तान को मुबारकबाद पेश की गई। जस्टिस तासी को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख की चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले लद्दाखी है। बार एसोसिएशन ने इसे पूरे लद्दाख खित्ते के लिए एक तारीखी मौका और लम्हा करार दिया। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माकरे के रिटायर होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। के लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे लद्दाख का एक सपूत, लद्दाख का एक सन ऑफ द सॉइल हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचा है। हम दिल के अमीर गहराइयों से टशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम हाथ जोड़ के उनके मशकूर और ममनून है कि उन्होंने एक लद्दाख के बहुत कामयाब, ईमानदार और मेहनती एक जज को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बनाया है। इसके लिए हम लद्दाख के लेह के बार एसोसिएशन बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से सबको शुक्रिया अदा करेंगे और दिल की गहराइयों से जस्टिस तशीर अफ्तार साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उनको हम यही बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके लिए हम दुआ करते हैं कि भाई वो आगे भी कामयाब रहेंगे और पूरे लद्दाख का नाम रोशन करेंगे ही करेंगे और हमारे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे ईमानदारी के लिए, मेहनत के लिए और इसी तरह से एक डिलीवरी ऑफ जस्टिस को एक इफेक्टिव वे से आगे तक पहुंचाने में वो कोशिश करेंगे। मैं इतना ही पूरे बार एसोसिएशन की तरफ से, पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ। लद्दाख में जूनियर स्टेट हाई स्पीड स्केटिंग प्लेयर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। लद्दाख स्पोर्ट्स एकेडमी के फाउंडर और इंटरनेशनल कोच मोहम्मद अब्बास नोटदुक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग
कोचिंग कैंप है जो आइस रिंग में जाने से पहले अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद देता है। खासतौर पर यह कोचिंग कैंप खिलाड़ियों की दौड़ की सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करता है, जो कि आइस रिंग में परफॉर्म करते वक्त जरूरी है। इसके लिए आइस रिंग पर परफॉर्म करने से पहले ट्रैक पर दौड़ना इसकी मदद होती है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए कोच मोहम्मद अब्बास ने बताया कि जनवरी 2023 में दिल्ली में होने वाले कौमी चैंपियनशिप में आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में शिरकत के लिए एक ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप लगाया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं ओपन स्टेडियम स्पितुक के ग्राउंड पे, तो जहाँ पर यहाँ पर कोचिंग चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कोचिंग किस बारे में है कोच से। तो सर, ये कोचिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे और आपका नाम? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नोरदक है और मैं आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और लॉन्ग ट्रैक स्पीड स्केटिंग का इंटरनेशनल कोच हूँ और नेशनल आइस स्पीड स्केटिंग का कोच हूँ। तो सर, इसमें अभी कितने आप बच्चे को पार्ट करते हो सर? कितने बच्चे हैं आपके पास? फ़िलहाल इस बार हमारे पास 15 बच्चे हैं टोटल। तो अभी तो कुछ ही आए हैं क्योंकि बाकियों का स्कूल का अभी वैकेशन शुरू नहीं हुआ है, जिन का वो आए हुए हैं। और ये तकरीबन हमारे अभी 10 दिन से ये कैंप चल रहा है और इस कैंप का मकसद ये है कि हमारा अभी जनवरी में यहाँ पे दिल्ली में नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का। उसमें लद्दाख की टीम का पार्टिसिपेशन के लिए हम ये जूनियर टीम तैयार कर रहे हैं। अंडर कितने एज तक होते हैं सर? वो कौन से एज का? ये जूनियर जो है वो अंडर अलग अलग एज कैटेगरी होता है इसमें, जैसे अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 तक होता है। तो इसमें ये लोग अलग अलग बच्चे अलग अलग एज कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा नेशनल होगा। इससे पहले हमने अभी पिछले साल नेशनल दिल्ली में उसी जगह पे गुड़गांव में खेला था। वहाँ पे हमने 1 साल के ट्रेनिंग में ही हमने हमारे एक बच्चे ने अंडर 10 में सिल्वर मेडल जीता है नेशनल में। जी, अभी तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं सर? अभी इस टीम में इस बैच में तो अभी सिर्फ 15 ही बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो मैंने 2000 में मैंने शायद स्टार्ट किया था, उससे पहले था एक्चुअली। तो वो हम लेके कर्जूजिंग में करते थे। वहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच जो लद्दाख में पहले बच्चों के लिए कोई कोचिंग ट्रेनिंग नहीं होता था आइस हॉकी में बेसिकली और स्केटिंग में भी। तो मैं पहला कोच हूँ जिन्होंने कर्जूजिंग में विंटर स्पोर्ट्स के साथ मिल के हमने ये बच्चों के लिए ये शुरू किया था। तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करके उनको नेशनल खिलवाए थे। वो पहला जो फर्स्ट बैच के बच्चे थे वो 2003-04 से की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग करते करते एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भी ये ले गए बाहर के मुल्क में। दिल्ली के अलावा काफ़ी नेशनल खेले, गुलमर्ग, शिमला, दिल्ली में भी। फिर उसके बाद हम लोग थाईलैंड गए, वहाँ पे एक्सपोजर ट्रेनिंग करा। IIHF का एशियन चैम्पियनशिप कैंप थे, वहाँ गए। फिर उसके बाद IIHF रोमानिया गए। फिर हमारे आइस हॉकी के जो टीम जूनियर टीम थे वो फॉर्म हुआ पहली बार इंडिया के लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए चाइना गए, वहाँ पे हमने पहला आइस हॉकी जूनियर कप इंडिया के लिए जीत के लाया इंटरनेशनल, वो 2005 में। फिर तो सर, इस स्पोर्ट्स के एक्सपोजर के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, तो ये जो स्पोर्ट्स का जो एक्सपोजर जो अभी मैंने अभी बताया बच्चों को, वो बाहर जाके ही मालूम पड़ता है। उनको एक्सपोजर कैंप बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, जैसे एडवांस और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे पहुंचते। फिर उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से बात करके कि इनको एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया जाए। और उसके अलावा आइस हॉकी में तो चलते हैं, अभी जा रहे हैं, IIHF कैंप कर रहे हैं। स्पीड स्केटिंग में भी ये लोग मतलब आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली वो कंडक्ट करते हैं। तो उसमें भी हम अपने बच्चों को एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो उम्मीद है हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे करें। तो सर, जब हम बात करते हैं फिटनेस के बारे में, तो हर स्पोर्ट में फिटनेस चाहिए होता है। तो इस स्पोर्ट में मेरे ख्याल से कुछ अलग एफर्ट चाहिए इस फिटनेस का, तो उसके बारे में क्या करेंगे आप? जी हाँ, फिटनेस तो हर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़रूरी है और वो एक बेसिक
रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब तक फिट नहीं होंगे तो आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कैंप जो है बच्चों को, अभी लद्दाख में अभी विंटर आने मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और आइस जमा नहीं है, जो हमारे लद्दाख के पौंड और आइस रिंग जो हम बनते हैं, तो वहाँ के लिए अभी हमने ये जो कैंप जो है ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप यानी प्री आइस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है। आइस पे जाने से पहले वो फिट रहते हैं, उसके मसल डेवलप होते हैं, उसके पोस्चर सही होते हैं, उसका मेंटली कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हर स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो हम आइस स्केटिंग के लिए हमने काफ़ी मतलब समर में भी हम बीच बीच में इसको यहाँ पे ट्रेनिंग करने लाते थे बच्चों को। 15 दिन का कैंप, 1 महीने का कैंप, इन्होंने इस साल 4 कैंप करे हुए हैं। तो ये लास्ट कैंप होगा, फिर उसके बाद हम आइस पे उतरेंगे, फिर हम वहाँ आइस पे ट्रेनिंग करेंगे, फिर नेशनल के लिए जाएंगे। इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। तो इसमें आइस हॉकी की तरह जैसे या फुटबॉल की तरह या फील्ड हॉकी की तरह या बाकी जो टीम स्पोर्ट्स है उससे इसमें मैं देखता हूँ थोड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट, मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल ला सकता है। इसमें कोई टीम की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा फ़ायदा ये है इसमें कि ये जिस तरह ट्रैक एंड फील्ड में 100, 200, 400 मीटर का इवेंट्स होता है, इसी तरह हाई स्पीड स्केटिंग में भी 500 मीटर का, 1000 का, 1500 का, 3000 का, यानी कि 4 अलग अलग गोल्ड मेडल एक बच्चे का चांस होता है। तो बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ एक रिफ़्रेशमेंट का भी होता है, बहुत ज़रूरी होता है इनका। जो आफ्टर ट्रेनिंग जो एक रिफ़्रेशमेंट होता है वो थोड़ा अगर उसमें मदद मिल जाए, और इक्विपमेंट के हिसाब से जैसे ये जो हाई स्पीड स्केटिंग जो हमारा इक्विपमेंट है वो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे आइस हॉकी भी पहले नहीं मिलता था, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, इसी तरह स्पीड स्केटिंग का भी जो ब्लेड एंड शूज़ है वो आइस हॉकी से बिल्कुल अलग है। तो वो उसको भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ सपोर्ट मिले तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं और लद्दाख का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद अब्बास, जो कि इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि ये बहुत सारे बच्चों को अभी कोचिंग करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा के खेल चुके हैं, और वो बच्चे और अभी साथ ही साथ ये छोटे बच्चे को भी यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं आइस स्पीड स्केटिंग, आइस शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक में भी। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जगमेट, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेस है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ले की हिदायत के मुताबिक फोटो इलेक्टोरल रोल्स की खुसूसी समरी रिवीजन के अंदर स्वीप के तहत खुसूसी कैंप लगाए गए। 1 जनवरी 2023 को स्वीप न्यूडल ऑफिसर के जरिए वोटर लिस्ट में रह जाने वाले वोटरों के इंदराज के लिए तुर्तुक बोर्डिंग में एनरोलमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को इलेक्शन और वोट के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट्स को इलेक्शन के अमल के बारे में बताना था। स्टूडेंट्स ने इलेक्शन के हवाले से सवालात भी किए और फॉर्म भी भर लिए जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है। मैं तजम्मुल आरा, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, नूडल स्वीप प्रोग्राम के नूडल ऑफिसर भी हूँ। हम आज यहाँ तुर्तुक में इसलिए आए थे कि यहाँ पे जो 18 हो रहे हैं बच्चे, जो 18 साल के हो रहे हैं 1 जनवरी को, उनको इनरोल करना, उनको इपिक कार्ड इशू करने के लिए यही अवेयरनेस देना चाह रही थी कि आप लोग अपने आप को इनरोल करें। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इन बच्चों के लिए, बच्चों की आसानी के लिए कुछ नए डेट्स उन्होंने ऐलान किए कि जो 1 अप्रैल 2023 को 18 साल होने वाला है, जो 1 जुलाई 2023 को 18 साल होने वाला है, जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल होने वाला है, वो उन बच्चों को भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम के लिए आज हम इस तुर्तुक एरिया में आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के बच्चे इनरोल हो सके। इसके बाद बोगदांग भी जाएंगे, वहाँ पे भी इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम अवेयरनेस दे देंगे लोग। मैं नायब तहसीलदार तुर्तुक, आज जो स्वीप प्रोग्राम यहाँ चलाया गया, इस प्रोग्राम का मेन और असली मकसद और मोटिव जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यानी ये लोगों को इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सेदार बनाने के लिए और इनको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में एजुकेशन दिलाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। बहुत बेहतर प्रोग्राम रहा। हमारे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूटी लेह से नोडल ऑफिसर जनाब तरन्नुम आरा जी यहाँ तशरीफ़ फरमा चुकी थी, तो उन्होंने सही तरीके से
इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी जानकारी और तसल्ली बख्श जानकारी दी, तो हम उनसे शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं हमारे आने वाले जो 18 साल होने वाले हैं 1 जनवरी 2023 को, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुतालिका बीएलओ से रब्ता करके अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज करने के लिए यानी बीएलओ साहब से रब्ता करें। जैसे कि आपने देखा, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है यहाँ के जो बच्चे हैं जो 18 साल के होने वाले हैं उनको नॉलेज देना इलेक्शन के बारे में और उन्हें जानकारी देना कि इलेक्शन क्या होता है। और इसी के साथ साथ बने रहिए तुर्तुक से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। झूले लद्दाख। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.